मैंने किया था, but I know I went through a lot of pressure. And now I know I can go through it all over again. So have faith in everything that you have done until now. इसमें see I've marked this page. हर exam से पहले I used to go through this page क्योंकि इसमें Hi guys, welcome back to my channel. I'm Swati and this video is about economics and BST का revision. So I'm assuming कि तुम लोगों का syllabus पूरा हो चुका होगा and you all might be practicing sample papers by now. So many of you might be preparing for COET and कई लोग नहीं कर रहे होंगे. But if you want to start or enhance your journey, I want to tell you guys about the physics वाला Commerce Boards Booster 2025 plus Pravesh COET Commerce, which is a combined batch which includes class 12 and COET preparation for 2025. But if you want only COET, they also have the Pravesh COET Commerce 2.0, जिसमें they'll provide recorded lectures, live lectures, 24/7 doubt clearing and so on. Use my coupon JS200 for an extra discount. Enroll now. and if you require books for practice, Physics Wala also offers books at very affordable prices on their website. Do check it out. The links are in the description. Moving on to the video, the first part will be regarding economics. ठीक है? Now, I am assuming that your syllabus is completed. ठीक है? तुम्हारा syllabus हो चुका है. Now, please, there's a humble request. Please get yourself exam idea का question answer वाला book. I'll show it to you. Yes, I am back. Okay. I found my exam idea का book and I borrowed it from a senior. And इसमें देखो, इसमें fill in the blanks एक chapter के. This is for Indian economics. Fill in the blanks है, assertion reason है, then state the reason for answer. This was a very good part. ये जो true false है ना with reason वाला, this was very helpful. Then the question जिसमें से I used to learn these lines कि allow duty free export of raw material from India to Britain. ये सारे जो lines होते थे ना वो आंसर लिखने में हेल्प करते थे later on. हर रिविजन में I used to go through these and learn these the points कि कौन सा point किससे related है and stuff. Then especially this last chapter of Indian economics, वो जो comparative development of experiences वाला था, that China one, वो जो China वाला chapter था. Now इसमें see I've marked this page. हर exam से पहले I used to go through this page क्योंकि इसमें China के जो drawbacks थे, पाकिस्तान के जो drawbacks थे, इंडिया के जो drawbacks थे, वो इस questions के form में दिया हुआ था. Therefore I insist कि get yourself exam idea and learn and go through all the chapters before going for boards क्योंकि तुम्हें ये जो questions हैं ये help करेंगे and they will help you understand how to write answers. बाकी if you find anything confusing, concept ही नहीं समझ में आ रहा, please refer to YouTube. In both BSc and economics, अगर concept में ही doubt हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, please YouTube पे जाओ, ढूंढो. There are so many creators. तुम्हें एक का नहीं समझ में आएगा, तुम अगले के पास जाओ, कोई ना कोई टीचर का तुम्हें समझ में आ जाएगा. And I will not say कि सबको सिर्फ एक ही टीचर का समझ में आएगा, क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग पैटर्न अलग है. एंड तुम लोग को ये बात अभी पता होगी, सबको पता होगी ये बात कि मेरा अंडरस्टैंडिंग पैटर्न डिफरेंट है एंड डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टीचर्स कैन सूट माई नीड्स, राइट? सो जो समझ में नहीं आ रहा है, गो टू यूट्यूब एंड अपना डाउट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो. आंसर नहीं समझ में आ रहा, गूगल करो, चैट जीपीटी पे सर्च करके उसको एक्सप्लेनेशन पूछो. दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम चैट जीपीटी पे डालो, वो तुम्हें आंसर एक्सप्लेन कर देगा. नेक्स्ट बाकी न्यूमेरिकल इन इकोनॉमिक्स, आई डोंट थिंक वो बहुत ज़्यादा मेजर इशू होगा. वन शॉट्स देख लो, रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन न्यूमेरिकल्स के बारे में देख लो. मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत मेजर इशू नहीं होना चाहिए उसमें. अब आपका अगला सवाल होगा कि दीदी अब ये क्वेश्चंस कैसे करें, टाइम किसके पास है? फॉर दैट सी नाउ यू विल हैव टू रिवाइज योर चैप्टर्स. तुम एक चैप्टर को कितने बार पढ़ोगे? हाँ, तुम एक चैप्टर को कितने बार पढ़ोगे? रादर देन अगेन एंड अगेन रीडिंग द चैप्टर, तुम उस चैप्टर के क्वेश्चन देख लो. जस्ट डिसाइड कर लो, टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक्स एंड दिस चैप्टर फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बस गो थ्रू कर लो, क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो, आंसर्स गो थ्रू कर लो. अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आई नो व्हाट पॉइंट्स टू राइट, जस्ट रीड द आंसर वंस सो दैट इवन इफ यू आर मिसिंग एनी पॉइंट मेरे दिमाग में वो आ जाए. एंड अदरवाइज अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम इसके पॉइंट्स याद कर लो, तुम्हें क्वेश्चन आंसर प्रॉपर्ली मिल गए, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स मिल गए. एंड पता है क्या, दीज आंसर्स आर वेरी गुड. These answers include actually what you have to write in exam in macro as well and Indian as well. है ना, क्योंकि मैक्रो का क्या सीन है, तुम उसमें कहानी नहीं लिख सकते हो. You have to write what the question is asking and to understand that you have to read and practice questions. Therefore, exam idea करो, it is very important. You can leave sample papers for a while in economics and go through exam idea once. 3-4 दिन लो, बैठ के 3-3 घंटा लगा के इंडियन इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम आइडिया पढ़ लो. आई स्वेयर इट विल हेल्प यू अलॉट. तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा. नेक्स्ट टाइम यू राइट अ पेपर, तुम्हें वो पॉइंट्स याद आएंगे, तुम्हें आंसर लिखना आएगा कि ओके इस आंसर में ये पूछ रहा है. एंड जो क्वेश्चन घुमा के आते हैं ना, उसमें भी तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हुआ कि क्वेश्चन घुमा के जो पूछ रहा है उसमें क्या करना है. ठीक है, और आई विल नॉट से कि हर क्वेश्चन को बैठ के रटो, जितना हो रहा है उतना करो. ठीक है, एंड अगर सी ट्रायल एंड एरर,
ठीक है, ट्राई करो. इफ़ यू थिंक दैट दिस इज जेन्युइनली हेल्पिंग यू, या तुम्हें लग रहा है कि हाँ यू आर गेटिंग न्यू नॉलेज और समथिंग दैट यू डिडंट नो बिफोर, कंटिन्यू. इफ़ यू थिंक कि नहीं यार, आई नो दीज थिंग्स बिफोर एंड नाउ आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इतना नहीं पूछेगा मेरे को लगता है, गो विद द गट, फॉलो योर गट. बट आई विल से मेरा एडवाइस है ये, गो थ्रू एग्जाम आइडिया एटलीस्ट वंस बिफोर अपियरिंग फॉर योर बोर्ड्स. मेरे ना स्कूल में जब भी सैम्पल पेपर्स या होते थे या पेपर्स होते थे, आई यूज्ड टू रिवाइज द होल एग्जाम आइडिया फॉर इकोनॉमिक्स इन अ डे. कि कल पेपर है तो आई विल गिव माई होल डे टू रिवाइज दिस. अगर कम टाइम होता था, इज टू ओनली रिवाइज द चैप्टर्स व्हिच आई एम वीक इन. तुम ये भी कर सकते हो. इफ यू थिंक कि कोई चैप्टर तुम्हारा वीक है, तुम नहीं कर पा रहे हो अच्छे से उसको रिवाइज, या फिर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, उसके बस एग्जाम आइडिया क्वेश्चन देख लो. नेक्स्ट वी कम टू बिजनेस स्टडीज. बिजनेस स्टडीज में सब हेडिंग्स की इंपॉर्टेंस तुम लोग समझ चुके होंगे अभी तक. पेपर लो, पेन उठाओ, सारे चैप्टर्स के जितने सब हेडिंग्स हैं लिखना शुरू कर दो. रिवाइज पहले करना, रिवाइज करो, बैठ के वर्ड टू वर्ड सब हेडिंग सारे चैप्टर्स के रिवाइज करो, एंड देन स्टार्ट राइटिंग देम ऑन पेपर. आई हैव शोड यू अर्लियर हाउ आई यूज्ड टू राइट ऑल द सब हेडिंग्स टू मेमोराइज देम प्रॉपरली. एंड अगर तुम्हें निमोनिक्स बनाना हेल्प करते हैं, डू दैट. मुझे नहीं करता था, mnemonics never helped me, so I never did that. I just learned them. I just remembered the page and how that subheading looked like. मेरे को वो पिक्चर मेंटल इमेज मेरे दिमाग में फिक्स रहती थी कि दैट पेज लुक लाइक दिस एंड उसमें ये सब हेडिंग्स थे. सो सबसे पहला काम है मास्टरिंग द सब हेडिंग्स. बार बार रीड करके, लिख के, बोल के, जैसे भी तुम्हें मन करे, डू इट. मेक योर फ्रेंड क्विज यू रिगार्डिंग सब हेडिंग्स एंड व्हाट नॉट. 3-4 घंटे का प्रोसेस होगा, पर तुम्हारे पूरे BST का सब हेडिंग एकदम पक्का हो जाएगा. इससे बहुत ज़्यादा श्योरिटी एंड एक बेस प्रॉपर बन जाएगा. ठीक है, सबसे पहला सारे चैप्टर्स के सब हेडिंग्स को रट डालो. सेकेंड, सब हेडिंग्स करते करते तुम उस पैराग्राफ को देखो और जो कीवर्ड्स हैं उसको याद करो, या फिर एक रिवीजन मान लो कि अच्छा इसमें ये था. देखो सब हेडिंग पढ़ के तुम्हारे दिमाग में आंसर तो बन ही जाना चाहिए कि हाँ इसमें ये पॉइंट था, एंड यू विल रिमेंबर कि मेरे को ये लिखना है इसमें, है ना. थर्ड पॉइंट, राइट सैम्पल पेपर्स लिखो तो फिर उसमें प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, टाइमिंग पे ध्यान दो. ये नहीं कि एक क्वेश्चन को सजाने के लिए यू आर गिविंग इट 2 hours. आई हैव शेयर द प्रेजेंटेशन टिप्स एंड उससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तुम उतना ही कवर कर लो, इट विल बी अ बिग डील. एंड इफ आई हैव नॉट वॉच्ड द प्रेजेंटेशन वाला वीडियो, व्हाट आर यू डूइंग? Those were the golden tips which will help you get 100 in BST. BST is a subject where you have to score 100 out of 100. It is the best, easiest and most perfect subject. I may be a little biased, but I love that subject. And so follow the presentation tips. If you have not watched, I highly recommend you to watch that video. Not because it is my video, it is if that video was made by even any other creator, I would have recommended you to watch it. I love those tips. Please watch that video, the presentation tips वाला. Fourth point, अगर तुम्हें अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि तुम लिख पाओ एंड तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, डू दिस. आई हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर, आई विल टेल यू दिस अगेन. टेक अ सैम्पल पेपर का बुक, ठीक है, कीप इट बिसाइड योर बेड ऑलवेज, और ऑन योर बेड, कहीं पर भी बेड के नीचे टू कीप इट. एंड सोने से पहले अगर मुझे नींद नहीं आती थी, आई यूज्ड टू जस्ट ओपन अ सैम्पल पेपर एंड सॉल्व इट यूजिंग अ पेंसिल. दिस इज़ वन ऑफ द सैम्पल पेपर्स विच हैव सॉल्व यूजिंग अ पेंसिल. बस बुक उठाया एंड सॉल्व यूजिंग अ पेंसिल. जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे थे, नहीं आ रहे थे, उसको सर्कल कर लिया. देन सी सब हेडिंग्स लिखना कि इस आंसर में व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आई विल राइट, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट तो बन जाएगा, बट द हेडिंग्स आई शुड रिमेंबर. सी एंड देन आंसर मैच कर लेना. आंसर में जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे या जो मैंने स्किप किया है वो सब याद कर लेना. बाय द टाइम आई वाज डूइंग दिस, मेरा प्रेजेंटेशन टाइमिंग का इशू नहीं था. ठीक है, मुझे टाइमिंग में इशू बस स्टार्टिंग में 1-2 पेपर में आया होगा, बट फिर नहीं आया बिकॉज आई टू स्ट्रिक्टली फॉलो वो 15 मिनट वाला द स्केड्यूल आई हैव गिवन इन प्रेजेंटेशन वाला वीडियो. आई यूज्ड टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट फॉर एवरी आंसर. एंड अगर मेरा कोई आंसर उस टाइम लिमिट में नहीं पूरा होता था, आई यूज्ड टू जस्ट कंप्लीट इट इन शॉर्ट एंड थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आई यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसको बाद में पूरा कर लेंगे. इफ यू वांट टू फोकस ऑन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स फॉर द टाइम बीइंग, तुम BST में ये कर लो, तुम्हारी BST की प्रैक्टिस भी नहीं छूटेगी. यू विल रिमेंबर एवरीथिंग. जो नहीं आ रहा है बुक खोलो, रिवाइज करो. सी दिस इज द पैटर्न टू डू ऑल द सब्जेक्ट्स राइट नाउ. सैम्पल पेपर करो, क्वेश्चन सॉल्व करो. जो नहीं आ रहा है बुक खोलो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, अगेन गो बैक टू द क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है हम लोगों को. एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप 10 क्वेश्चन करके जाओगे पेपर के लिए, आपको हमेशा 11वां क्वेश्चन पूछेगा. तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, अपार्ट फ्रॉम दीज टिप्स, it is very 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 important for you to calm down. अपने आप को calm down रखना, अपने आप को बताना कि हो जाएगा. have faith in whomever you believe in. Have faith in the universe and have faith in everything that you have done
until now, क्योंकि यार तुम्हें गिराने के लिए बहुत लोग आएंगे. You have to keep yourself here. No matter what you feel about yourself, you have to keep yourself here, क्योंकि दुनिया तुम्हें यहाँ पे ही रखेगी. Your friends, तुम्हारे दोस्त बस ये चेकअप करने के लिए कि हाउ यू आर डूइंग, बस तुम्हें इनडायरेक्टली नीचे दिखा देंगे. मेरा तो 10 चैप्टर हो गया, तुम्हारे 5 ही हुए. You have to protect your self confidence, and life is so much about self confidence. Don't beat yourself down. तुमने जितना भी किया है यार, you have come this place, come to this point right now. And अगर नहीं किया है तो फिर यार जान लगा दो, अभी भी जान लगा दो, अभी भी लगा दो, जितना हो सकता है उतना लगा दो इन मोमेंट तक. एंड पता है क्या, फिर रिजल्ट के बाद यू विल चेरिश द फैक्ट दैट यू वर्कड सो हार्ड फॉर दिस. ट्रस्ट मी, तुम्हारा रिजल्ट, मुझे नहीं पता अभी मेरा रिजल्ट क्या था. कोई रोज याद नहीं लाते, मेरे से कोई नहीं पूछता रोज. मेरा फर्स्ट सेमेस्टर भी पूरा हुआ है, मेरे को कोई अता पता नहीं है मेरे मार्क्स कितने थे. मेरे से ना कोई पूछ रहा है, ना किसी को फर्क पड़ता है, घर वालों को भी नहीं फर्क पड़ता. अभी भी घर में बहुत इज्जत नहीं मिलती है, ठीक है. दरवाजे खुल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, पर बहुत इज्जत नहीं मिलती है घर में. 1 साल हो गया रिजल्ट आए हुए, उस दिन भर का सिर्फ उस दिन इज्जत मिली थी, उसके बाद भी नहीं मिलती है. लेकिन यार आई नो दैट आई हैव बीन थ्रू दैट हार्ड वर्क. मे बी आई डिडंट स्कोर इनफ, जितना मेहनत मैंने किया था, बट आई नो आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर, एंड नाउ आई नो आई कैन गो थ्रू इट ऑल ओवर अगेन. सो नथिंग, आई एम स्कैर्ड ऑफ नथिंग. इट मैटर्स अ लॉट. ट्रस्ट योरसेल्फ, हो जाएगा. I hope this video was helpful, and I will meet you guys in the next video. Up until then, work hard. All the best. Bye.